Hi Red Church, we welcome you to our online Red service and आप सबका स्वागत है हमारे रेड कलिशा के ऑनलाइन सर्विस में। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। We feel really great and blessed to see you all in this online service. But before we move ahead, I would like to share a verse. भजन संहिता 22वें अध्याय और 30वें वचन में कहता है कि परमेश्वर हमारे स्तुतियों पर विराजमान होता है। That God is enthroned in our praises, and what better than just enthroning God today in our service. So let's welcome our worship team. स्वागत करते हैं हमारे आराधना दल का और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी स्तुतियों पर विराजमान होगा. We will believe that God will be enthroned in our praises. Let's welcome them. गुड इवनिंग कलीसिया। मुझे आशा है कि आप स्तुति आराधना के लिए तैयार हो। मुझे याद है कि जब हम कलीसिया एक होकर मिलते थे तो आप सब कैसे नाचते थे और गाते थे और कूदते थे, तो दाऊद की तरह। तो हम अभी अपने घरों में भी ये कर सकते हैं। तो आइए कलीसिया साथ मिलके दाऊद की तरह नाचेंगे और गाएंगे। With so much of joy, O Lord God. Thank you, Jesus. And that's why we can sing to you, we can shout to you, O Lord God, and we can dance, O Lord Father, in your presence. Father, we need your presence, O Father. Oh, what a freedom and joy in your presence, O Lord God. We want you, O Father. We need you. Let's worship him, church. Yes, Let's Father. think of you, all Jesus. the reasons Thank you, Jesus. that you can, and let's worship him. Bring your presence, O Father. Thank you, O Father. Thank you, O Father. Worship you, Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes. the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Rich in love and you're so true and good. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh, my soul, oh, my soul, worship His His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh, my soul, oh, my soul, and worship His holy name. yeah. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Let's worship. Oh, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Worship. Oh, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Father, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Your name is a rock, Lord, Father, and we worship you, Father. Thank you, Lord God. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। इंतकाल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा।
church, over our children, over our spouses, over our families, over our city, and over our nation. Let's take this chance and let's speak over this pandemic and over this sickness that is going on. Let's not give up hope. Let's not get used to it, but let's speak over it in Jesus' name. Let's do it together, church. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Father, we want to thank you for this time of praise and worship that we had. And God, I just want to commit the further time into your hands, O Lord God. We pray, O Lord God, that you would speak to us through the word, O Lord God. Open our hearts, O Lord God. We humble ourselves before you, O Lord God. And we give the further time into your hands, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. हाय कलीसिया, धन्यवाद करते हैं कि आप सब सहभाग हुए इस थर्सडे के प्रार्थना सभा में, और आशा करते हैं कि आने वाले 9 जुलाई को शाम 7 बजे थर्सडे को जो कि गुरुवार है, आप फिर से आएंगे हमारे साथ जूम कॉल में, ताकि हम देश के लिए और उनकी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर सके। तो प्लीज़ कृपया करके 7 बजे 9 जुलाई थर्सडे को आप जूम कॉल पे आइए। और आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हमारे चर्च ने एक बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया है, और वो ब्लेसिंग इंग्लिश वीडियो का कॉपी है और हिंदी वर्जन में है। और वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिलीज़ दिस सॉन्ग ब्लेसिंग्स इन हिंदी, एंड इट इज़ मेड बाय रेड चर्च। सो इट्स गोना बी रिलीज्ड इन दिस सर्विस, इन दिस ऑनलाइन सर्विस। सो बने रहिए, ये ऑनलाइन सर्विस में उसको रिलीज़ किया जाएगा, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपके पास टाइट्स और ऑफरिंग है तो आप उसको उस बाजू में रख सकते हैं, या फिर पास्टर या देवेश को कॉल कर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑफरिंग्स एंड टाइट्स, यू कैन कीप इट असाइड और कॉल देवेश or Pastor Terence in regards to tithes and offering. We'll move ahead now to the most exciting part of our service, that is the word, and we will welcome up dear Pastor Terence. हम Pastor Terence का स्वागत करते हैं, और उनके साथ खूबसूरत Sharon Goracia, our translator. तो आइए उनका सबका स्वागत करते हैं। Hi everyone, it's so good to see you all once again. और हाय सभी को, आप सबको फिर से एक बार मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। These past 2 weeks, we've been announcing that we are going to release a Hindi version of the Blessing song for our church. और पिछले 2 हफ्ते से ये अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं हम लोग कि हम ये गाना हिंदी में अनुवाद करके रेड कलीसिया में से रिलीज करने वाले हैं, जिसका नाम है द ब्लेसिंग। So I thought might as well preach about it.
तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी पे प्रचार किया जाए। I have chosen one of the strangest story that we can talk about the blessing. और मैंने बहुत ही अजीब सी कहानी चुनी है आशीष के बारे में बात करने के लिए। It's from Genesis chapter 27 और वो उत्पत्ति का 27वां अध्याय है, and it's from verse 18 to 35. 18 से 35 वचन। And I would like to, I would have loved to read in English and Hindi, but since it's a long passage, I would request Sharon to just read it in Hindi directly. और मुझे अच्छा लगता अगर हम इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही लंबा अध्याय है तो मैं शेरोन से कहूंगा कि वो पूरा पढ़े। उत्पत्ति का 27वां अध्याय 18 से 35 वचन। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव की है से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं चीन्हा, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सच में मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। Let me just give a brief context of this story. और मैं इसे एक छोटे में आपको इस कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। In the beginning, God created the heaven and the earth, and He created Adam and Eve in that. और शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आसमान बनाया और फिर आदम और हवा को बनाया। We know that Adam and Eve sinned. और हम जानते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया।
And after that, there's a downward spiral of all mankind. They are almost going towards destruction. और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार जो मानव जाति है वो एक नाश के रास्ते पे निकल चुकी है. And that we see in the first 11 chapters. और पहले 11 अध्याय में हम उसे देखते हैं. In the 12th chapter, God comes to this man Abraham and blesses him. और 12वें अध्याय में परमेश्वर इस व्यक्ति के पास आते हैं जिसका नाम है अब्राम और उसे आशीष देते हैं. The blessing and the promise in summary involve that your generations, through your generations will come the Messiah. और उसकी आशीष और जो वादा परमेश्वर ने उससे ये किया था कि तुम्हारी पीढ़ी द्वारा पीढ़ी में ही मसीहा आएगा. So that generation involved the generations, in those generations, one person will carry the seed to the Messiah. और उस हर पीढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उस बीज को लिए चलेगा, जो मसीहा जिसमें से आएगा. So until the Messiah comes, there will be one person in each generation that carries the seed. और जब तक कि मसीह नहीं आ जाते तब तक एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उस बीज को लिए चलेगा. So this man is supposed to be the leader. He's supposed to be the teacher who's supposed to show the ways of God to his entire generation. तो ये वो व्यक्ति होगा जो वो एक अगवा बनेगा, वो एक शिक्षक बनेगा ताकि वो लोग अपने लोगों को परमेश्वर का रास्ता दिखा सके. He was sort of the leader. He was blessed to be the leader of that generation. और वो उस पीढ़ी का एक अगवा बनेगा उन सारे लोगों का. That was to continue until Jesus came. और वो तब तक लगातार चलते रहना है जब तक कि यीशु नहीं आ जाते. Abraham had two sons, Ishmael and Isaac. Isaac was the promised son. और अब्राम के 2 पुत्र थे, इश्माइल और इसाक जो है वो वादे का पुत्र था. Isaac married Rebekah and she had twins, Esau and Jacob. और इसाक ने जो है वो उसने रिबेका से शादी की जिसने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया, ईसा और याकूब. Esau came out of the womb the first, so he was the firstborn and Jacob was the second. तो इसाक जो है वो पहले उसका जन्म हुआ इसलिए वो पहला पुत्र था और याकूब दूसरा. So we come to the start of the chapter 26 and we see that Isaac is old and ready to die, and now he is going to pass on the blessing of the firstborn to one of his 2 sons. और हम देखते हैं कि इस अध्याय में कि इसाक जो है वो अपने जीवन के अंत तक पहुंच रहा है और अब उसे उसका वादा जो है वो अपने पुत्र को देना है. So who will it be, Esau or Jacob? Who's going to be this firstborn? Who's going to carry that blessing? तो वो पुत्र कौन होगा जो इस आशीष को लेगा? वो पहला जन्मा पुत्र कौन होगा? Esau or Jacob? एसाव या याकूब? Esau was very openly loved by Isaac, his father. और एसाव से इसाक जो है वो पूरी रीति से प्रेम करता था. And so now Isaac is formally wanting to bless Esau. So he tells him, go and find something to kill and cook something and bring it to me. I will eat it and bless you. तो इसाक जो है अब वो चाहता था कि वो आशीष जो है वो एसाव को दे, इसलिए वो कहता है कि जा और मेरे लिए शिकार पर जा और भोजन बनाकर लेकर आ ताकि मैं तुम्हें आशीषित कर सकूं. Esau is obviously very happy. He goes out on the hunt, and meanwhile Rebecca hears this entire conversation and she's very angry. और एसाव जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो जाता है शिकार पर, लेकिन इसी बीच में रेबेका जो है वो सारी बातचीत सुन लेती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है. Because she loved the younger son Jacob and she wished that Jacob received that blessing. क्योंकि उसे याकूब से ज्यादा प्रेम था और वो चाहती थी कि जो वो इसाक का जो आशीष है वो याकूब को मिले. What follows is like high level drama that is worthy of a Bollywood movie. और इसके बाद जो होता है वो एक बहुत ही एक बॉलीवुड मूवी जैसा ही है.
Rebecca tells Jacob that, come, I'm going to cook you something so that you can take this cook to your father Isaac and take his blessing that he's going to give to Esau. तो रेबेका याकूब से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ पका कर दूंगी, तुम इसे लेकर जाकर इसहाक को खिलाओ और ताकि वो तुम्हें आशीष दे। So Rebecca tells Jacob, now you have to dress up like Esau. तो रेबेका जो है अभी याकूब को कहती है कि तुम्हें एसाव जैसे कपड़े पहनने हैं। You have to use rough skin, goat skin on your hand, on your neck, because so that you have hairy skin like Esau. और तुम्हें बकरे की खाल पहननी है अपने गर्दन पे, अपने हाथों पे, ताकि एसाव के चमड़े जैसा लगे तुम्हारा शरीर। Wear Esau's clothes so that you can smell like Esau. और एसाव के कपड़े पहनो ताकि तुम्हारे कपड़ों से एसाव का सुगंध आए। Remember, Isaac is blind and he cannot see at all, so he has to depend on his smell, his feel, and probably the voice, so he can be easily deceived over here. और याद रखिए कि इसहाक जो है अब वो अंधा है, उसे दिखता नहीं है और वो पूरी तरह निर्भर है स्पर्श को लेकर, सुगंध को लेकर, वो सारी और कान सुनकर वो सारी चीजों से ही वो पता लगा सकता है। You know, Jacob is scared of this plan that Rebecca makes over here. और याकूब को डर लग रहा है इस योजना को देखकर जो रेबेका बना रही है। And tells Rebecca, what if Isaac, my father, catches what you're doing and he gives me a curse instead of a blessing? और वो रेबेका से पूछता है कि क्या होगा अगर इसहाक को पता चला कि मैं याकूब हूँ और वो मुझे आशीर्वाद की जगह पे श्राप दे तो? Rebecca says a very strange thing over here. She says that let that curse fall on me. और रेबेका यहाँ पे बहुत ही अजीब सा चीज कहती है और वो कहती है कि वो श्राप जो है वो मुझ पर आने दे। Let that curse fall on me. वो श्राप मुझ पर आने दे। You know, this whole aspect of blessing is so important and is so powerful, and we are going to learn some things out of this passage that we just read. और हम इस अध्याय से बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आशीष के बारे में। And there are 4 things that I want to share. और 4 चीजें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। The first thing is the power of blessing. और पहला चीज है आशीर्वाद में जो सामर्थ होता है उसके बारे में। The second is that there's a deep need for blessing in our lives. और दूसरा है कि सबके जीवन में गहराई से एक जरूरत है उस आशीर्वाद की। The third is how we usually try to attain our blessing. तीसरा पॉइंट है कि हम किस प्रकार कोशिश करते हैं कि हम वो आशीर्वाद पाए। And lastly, how we can actually get that blessing. और चौथा है कि हम कैसे उस आशीर्वाद को पा सकते हैं। You know, the first thing is that there's a power in blessing. पहली चीज है कि आशीर्वाद में सामर्थ है। You know, the English word blessing and Hindi word आशीर्वाद sometimes can be very shallowly used in our daily conversation. और जो इंग्लिश में ब्लेसिंग है और हिंदी में जैसे आशीर्वाद कहते हैं या आशीष कहते हैं, वो बहुत ही निचले स्तर पे उसका इस्तेमाल या अर्थ है हमारे जीवन में। If I say something good to you, if I say, Sharon, you're looking so beautiful, you'll turn and say, oh, you bless my heart. अगर मैं आपको कुछ अच्छा कहूँ, अगर मैंने कहा कि शरण तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तो तुम कहोगी तुमने मेरे हृदय को बहुत ही आशीषित कर दिया। But that's not how the people in the Bible took a blessing. लेकिन ये आशीष, इस प्रकार का आशीष वचन में लोग नहीं लेते थे। It's almost comical to think that Rebecca and Jacob thought that they can steal a blessing. और बहुत ही हास्यजनक वाली बात हो जाती है ये सोच के कि रेबेका और याकूब को लगा कि वो एक आशीर्वाद को छीन सकते हैं या चोरी कर सकते हैं। Yeah, and later on we see that Isaac and Esau really thought that the blessing has been stolen and they can't do anything about it. और बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार इसहाक और एसाव को भी लगता है कि जो आशीर्वाद है वो चला गया है और अब वो कुछ नहीं कर सकते। Jacob and Rebecca knew that once
Jacob goes out of that tent, Esau is going to come and everything is going to be exposed, and it would be shown that Jacob lied or stole the blessing. और याकूब और रेबेका को ये पूरी रीति से पता था कि एक बार वो उस तंबू से याकूब जब बाहर निकलेगा आशीर्वाद पाकर, उन्हें पता था कि एसाव वहां पर जाएगा और उसका याकूब के झूठ का खुलासा होगा. You know, can't Isaac just call Jacob back and say, "You crook, you thief, you manipulator. I said all those good things. Now I'm going to take it back." He could have just done that, right? तो क्या इसहाक याकूब को वापस बुलाकर ये नहीं कह सकता था कि तुम झूठे हो, मकार हो, मतलब चोर हो तुम, और वो सारे आशीष वापस नहीं ले सकता था क्या? Why didn't Isaac do that? Why didn't he take back all the blessing that he gave to Jacob over there? तो क्यों इसहाक ने वो सारे आशीष जो उसने याकूब को दिया वापस नहीं लिया? We'll just read those wonderful blessings, okay? I'm going to read in English and Sharon will read in Hindi. Isaac blesses Jacob, though he didn't know it was Jacob. It's written in the verse 28 and 29 of the 27th chapter. और हम देखेंगे वो सारे खूबसूरत आशीर्वाद जो इसहाक ने याकूब को दिए 27वें अध्याय 28 और 29 वचन में. It says, "May God give you the dew of heaven and all the fatness of the earth and plenty of grain and wine. Let people serve you and nations bow down to you. Be Lord over your brothers, and may your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be everyone who blesses you." सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे. राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे. तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे. जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए. Psychologists and counselors will tell you numerous number of times, and it's been built over and over again, that words spoken over your life remain with you for a long time. और साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स है, उन्होंने हमेशा वो कहते हैं कि जो चीज आप पर बोली गई है वो काफी समय तक उसका असर आपके जीवन पे दिखाई देता है. Especially words spoken over you by your parents. खास तौर पे वो शब्द जो आपके माता पिता आपके ऊपर बोलते हैं. You know, it can be words of affirmation and security. या तो वो शब्द हो सकते हैं प्रतिज्ञान और सुरक्षिता का. Or it can be words of condemnation, of rejection, of curses. It can be any of those two things. या शब्द हो सकते हैं निंदा का, श्राप का, या आपको नकार देने वाले शब्द हो सकते हैं. They will stay with you and shape you and build you or destroy you for a long period in your life. वो आपके साथ रहेंगे, आपके जीवन का वो एक आकार बदल देंगे और वो आपके जीवन को नाश कर सकते हैं. Words are powerful. और जो शब्द है उसमें सामर्थ है. And Isaac recognized that. और इसहाक को पता था ये, वो समझ गया था. In biblical terms, a blessing can mean this. और वचन के अनुसार एक आशीर्वाद का ये मतलब हो सकता है. Okay, I'll read it in English. Spiritually discerning what God is doing in a person's life. और आत्मिक रूप से समझना जो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कर रहा है. In that time and season. उस समय में, उस मौसम के दौरान. And then to articulate it in words and actions that will shape and build that person. और फिर उसे शब्दों द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर बोलने के लिए, ताकि वो उसे बना सके, उसे बांध सके उस व्यक्ति को और बढ़ा सके. Okay, I'll repeat this once again, okay? Listen very carefully. It's very important to understand what a blessing can mean in the Bible. और मैं इसे वापस दोहराऊंगा और आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना वचन क्या कहता है आशीर्वाद के बारे में. Spiritually discerning what God is doing in a person's life.
और आत्मिक रूप से समझना कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं एक व्यक्ति के जीवन में, in that time and season, उस समय और उस मौसम के दौरान, and then to articulate it in words and actions, और फिर उसे शब्दों द्वारा और कार्य द्वारा बताना, so that that person can be shaped and built. ताकि वो व्यक्ति को एक नया आकार और उस व्यक्ति को बढ़ाया जा सके या बांध सके. So blessing is not a wishy-washy warm feeling. और जो आशीर्वाद या आशीष है वो सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाली चीज नहीं है. So I make you feel good, so I blessed your heart. That's not what biblical blessing actually means. मैंने तुमसे कुछ अच्छा कह दिया इसलिए मैंने तुम्हारे हृदय को आशीष कर दिया, ये वचन के अनुसार नहीं है ये. So parents, I want to encourage you in this time of lockdown, take time to spiritually discern what God is doing in your children. और माता पिता से मैं अनुरोध करूंगा इस लॉकडाउन के दौरान कि आप आत्मिक रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं आपके बच्चों के जीवन में. And speak it over them and bless them. It will build and shape their life and they will never forget it. और उसे अपने बच्चों के जीवन के ऊपर बोलिए क्योंकि वो बांधेगा उन्हें और उनके जीवन को एक नया आकार देगा और पूरी रीति से आशीष करेगा. You know, Isaac understood this, what he was doing for Jacob. और इसहाक को ये समझ आया कि वो याकूब के साथ क्या कर रहा है. And he knew that he can't take his statements right back. और वो ये भी जानता था कि उसने जो बोला है अब उसे वो वापस नहीं ले सकता. So that's the power of blessing. और वो सामर्थ है आशीर्वाद का. With that we move to the second thing, that we have a deep need and desire to be blessed. और उसी के साथ हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही गहराई में एक इच्छा है कि एक जरूरत है एक आशीष पाने की. You know, Jacob's life is actually a story where his life story is this want and need to be blessed. और याकूब का जीवन अगर हम देखेंगे तो उसमें वो जरूरत दिखाई देती है जहाँ पे वो चाहता था कि उसे आशीष मिले. You know, many years later in Jacob's life, there was this strange night where he encountered a wrestling match with an angelic being. और काफी सालों के बाद एक अजीब सी रात को ऐसा हुआ कि जो याकूब है वो एक मुठभेड़ या कुश्ती में लग गया एक दूत के साथ, स्वर्गदूत के साथ. Jacob realized after a long time that he's not a simple man, he's an angelic being. So he didn't let him go till the daybreak, till morning. He didn't let that angel go. और याकूब को कुछ समय बाद ये समझ आया कि वो एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक स्वर्गदूत है. तो वो उसने उस स्वर्गदूत को छोड़ा ही नहीं जब तक कि सवेरा नहीं हुआ. Why? क्यों? Jacob said to that angelic being, I will not let you go unless you bless me. और याकूब ने उस दूत से कहा कि मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे आशीर्वाद नहीं देते. Strangely, not strangely actually, that angelic being asked him, what is your name or who are you? और अजीब बात नहीं है लेकिन उस दूत ने याकूब से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. When we come back to the story with Jacob, Esau and Isaac, और जब हम उस कहानी में वापस आते हैं याकूब, एसाव और इसहाक की, we read that Jacob is pretending to be Esau to go before Isaac and get that blessing. और हम देख रहे हैं कि याकूब जो है वो ढोंग कर रहा है एसाव बनने का ताकि वो इसहाक का आशीर्वाद पा सके. And Isaac asks him, who are you? और इसहाक ने पूछा तुम कौन हो? He says, I am Esau, your firstborn. और वो कहता है कि मैं एसाव हूँ, तुम्हारा पहला जेठा पुत्र. You know, the thing is, you can't bless yourself. और आप अपने आप को खुद को आप आशीर्वाद नहीं दे सकते. You have this deep desire to be blessed, but you can't bless yourself. आप में वो इच्छा है कि आपको आशीर्वाद मिले लेकिन आप खुद को आशीर्वाद नहीं दे सकते.
you need someone who you think is special to think of you as special. Then you'll be blessed. और आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे आप खास समझते हो और जो आपको आशीर्वाद दे कि आप खास हो. For Jacob, he longed that his father blesses him. और याकूब जो है वो इंतजार कर रहा था कि उसका जो पिता है उसे आशीर्वाद दे. You know that blessing that Isaac kept for Esau all his life, Jacob longed for that. और आपको पता है इसहाक ने जो आशीर्वाद एसाव के लिए बचा कर रखा था, उस आशीर्वाद के लिए याकूब इंतजार कर रहा था. So when Isaac asked, "Who are you?" he said, "I'm Esau, the firstborn." तो जब इसहाक ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं एसाव हूँ, तुम्हारा पहला पुत्र. Jacob risked everything to pretend to be the firstborn over there. और उसने याकूब ने सारी चीजों को जोखिम में डाल दिया ये ढोंग करने में कि वो एसाव है. Because in that culture, the firstborn was everything to the father. क्योंकि उस संस्कृति में जो पहला पुत्र है वो सब कुछ है उसके पिता के लिए. He would get the majority of the inheritance of the father. और उसके पिता का जो विरासत है उसका बड़ा हिस्सा उस बच्चे को मिलेगा. So all the other sons and all daughters were relatively ignored. तो बाकी के जो बेटे या बेटियां थी वो सबको ऐसे अनदेखा सा हो गए थे वो. Because it was the firstborn that would carry the name of the father. क्योंकि वो पहला पुत्र होगा जो अपने पिता का नाम आगे बढ़ाएगा. So Jacob wanted that. तो याकूब को वो चाहिए था. So Jacob wanted his father to look at him like how he looks at Esau. तो याकूब चाहता था कि उसका पिता उसे भी उसी प्रकार देखे जिस प्रकार वो एसाव को देखता था. Jacob wanted his father to feel special about him and to trust him with the inheritance that Isaac was so easily ready to trust that with Esau. और याकूब चाहता था कि उसका जो पिता है उससे याकूब को खास माने और उस पे यकीन करे उस बड़े विरासत के लिए जो इतनी आसानी से इसहाक जो है एसाव पे करता था. There's a deep desire in our hearts to be affirmed, to be encouraged and to be supported. और एक बहुत ही गहराई में वो इच्छा है हमारे दिल में जहाँ पे हमें प्रतिज्ञान चाहिए, जहाँ पे हमें प्रोत्साहन चाहिए. To be blessed upon us by those whom we consider to be special. उन लोगों से आशीर्वाद पाने के लिए जिन्हें हम खास समझते हैं. I'm not talking about the general blessing that a father gives in a household where there are many kids and he says, "I bless you all." मैं उस आशीर्वाद के बारे में बात नहीं कर रहा जहाँ पे एक परिवार में बच्चे हैं और पिता कहता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ. But it is to recognize and discern the uniqueness of each child. लेकिन ऐसा आशीर्वाद जहाँ पे माता पिता जाने कि उनके बच्चे में क्या अलग है. And to discern the gifts and the talents in them. और जाने वो अलग भेंट और जो टैलेंट्स है उनके अंदर. And to recognize the abilities and the purpose that they are created for. और वो जाने कि किस योजना के साथ उन्हें बनाया गया है, उनकी योजना क्या है. And to encourage and support them and to give them the blessing. और उन्हें प्रोत्साहित करे और समर्थन दे और आशीर्वाद दे. Everyone longs for it. हर कोई इस चीज का इंतजार करता है. Especially from the person you consider special. खास तौर पे उस व्यक्ति से जिससे आप समझते हो कि वो खास है आपके लिए. I'm saying this again, you can't bless yourself. और मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि आप खुद को आशीर्वाद नहीं दे सकते. You can read all the books about self-esteem, about knowing your worth inside yourself. You can watch YouTube videos and all that, but your longing to be blessed has to come from outside.
और आप YouTube में वीडियोस देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं खुद की मोल के बारे में, या आप क्या मायने रखते हैं ऐसा, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को आशीर्वाद नहीं दे सकते। You know, the first point I spoke about the power of blessing. The second was the need to be blessed. और जो मैंने पहला पॉइंट कहा था कि सामर्थ है आशीर्वाद में, और दूसरा एक जरूरत है आशीर्वाद की। Yeah, how do we actually try to get our blessing is the third point. और किस प्रकार हम कोशिश करते हैं कि हम आशीर्वाद पाए, वो मेरा तीसरा पॉइंट है। Let me tell you how we try to get our blessing. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे कोशिश करते हैं। By dressing up like someone else. हम कपड़े पहनते हैं दूसरों की तरह। Maybe not physical clothes, but we show ourselves to be someone else. शारीरिक तौर पे नहीं, कपड़ों से नहीं, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम कोई और है। Look at Jacob over here. यहाँ पे याकूब को ही देख लीजिए। He dressed up like Esau. उसने वो अपने आप को उसने एसाव जैसा बनाया। He made his skin feel like Esau. उसने अपना जो चमड़ा है वो भी एसाव जैसा बनाया। He cooked like Esau. उसने खाना एसाव जैसा पकाया। He smelled like Esau. उसकी सुगंध एसाव जैसी थी। He tried to sound like Esau. और वो एसाव जैसा उसने बोलने की भी कोशिश की। He probably lowered his voice to a manly, low voice, bassy voice to sound like Esau. और उसने शायद अपने आवाज को थोड़ा सा भारी बना दिया होगा ताकि वो एसाव जैसा सुनाई दे। He couldn't do it properly because Isaac says that you smell like Esau, you feel like Esau, but you sound like Jacob. पर वो शायद वो नाकामयाब रहा होगा उस शब्द उस बोल को निकालने में, क्योंकि इसहाक ने कहा कि तुम्हारी सुगंध एसाव जैसी है, तुम्हारा स्पर्श एसाव जैसा है, लेकिन तुम्हारा बोल जो है वो याकूब जैसा है। He knew that being himself, he can't get the blessing. वो जानता था कि वो खुद याकूब बनकर वो आशीर्वाद नहीं पा सकता था। And I told he longed for that blessing like how we also long that blessing. और जैसे मैंने कहा कि वो उस आशीर्वाद का इंतजार कर रहा है जिस प्रकार हम इंतजार करते हैं। We also do the same. We dress up. हम भी वही करते हैं, हम भी दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। We go to great lengths to ensure that we project something about ourselves so that people like us. और हम काफी कुछ ऐसी चीजें करते हैं, हम दूसरी चीजें करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें अपनाएं। Let me give you an example. और मैं उदाहरण देना चाहूंगा। When the IPL started initially, और जब शुरुआत में IPL शुरू हुआ, everyone around me was supporting Mumbai Indians because I was living in Mumbai. और सभी लोग जो है वो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे। Because I was living in Mumbai. क्योंकि मैं मुंबई में रह रहा था उस समय। I hated Mumbai Indians. लेकिन मुझे मुंबई इंडियंस बिल्कुल पसंद नहीं था। But just to be liked by other people, I pretended to support Mumbai Indians around them. लेकिन ताकि दूसरे लोग मुझे पसंद करें, मैंने ढोंग किया कि मुझे मुंबई इंडियंस पसंद है। That was so stupid. और वो इतना बेवकूफी वाला चीज था। It was frustrating and it didn't give me any satisfaction. It didn't give me any joy. I didn't like that feeling at all. और वो मुझे बहुत ही चिड़चिड़ापन दे रहा था, मुझे बिल्कुल संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं हो रहा था उस चीज का। So many times we say things just to please people, even though we know it's not true at all. कई बार हम ऐसी चीजें बोल देते हैं लोगों के लिए ताकि सिर्फ उन्हें हम खुश कर सके। We are just dressing up. हम सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, हम बस दिखावा कर रहे हैं। I met so many people in Mumbai and seen so many people that they are working jobs that they don't like at all, but just because of the position or the amount of money they get, they've just dressed up for that job.
और मैंने इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों से बात की है जो अपने कार्य के स्थान में वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही है या एक अच्छे ओहदे पर है, वो उस जगह पे नौकरी किए जा रहे हैं। They are not made with those talents and gifts to work in that job. They are made for something else, but just because they want to please their family, their parents, they just want to have this self-esteem. They just work it out. उनके पास वो भेंट या उनके पास वो टैलेंट नहीं है उस काम को करने के लिए, लेकिन सिर्फ ताकि वो अपने परिवार को या लोगों को खुश कर पाए, उन्हें खुश कर पाए, इसलिए वो उस जगह पे काम कर रहे हैं। We try our best to look normal so that people don't see our hurt, our pain, our struggles, and people like us like good people. और हम कई बार दिखावा करते हैं, मतलब कि हम खुश हैं, हम नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को वो दर्द, वो दुख और वो सब चोट वो दूसरे लोगों को दिख ना पाए और वो हमें पसंद करे। You know, social media almost increases the pressure to be happy. और जो सोशल मीडिया है वो प्रेशर को बढ़ाती है कि हम खुश दिखाई दे। It's almost like everyone is happy. और ऐसा लगता है कि सभी लोग खुश हैं। It's like they've gone to Goa. When we go to Goa, they've gone to Paris. When we try to go to Paris, they've gone to the moon. It's like always there's someone better than us. और अगर वो गोवा गए, हम गोवा गए तो वो पेरिस गए, हम पेरिस गए तो वो कहीं और चले गए। वो बस अपने आप को किसी ना किसी से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। There's so much of dressing up. I would just stop at that and say that there's so much of dressing up that we do, and this generation is probably gone way ahead than all our previous generations. और हम बस दिखावा कर रहे हैं, एक अलग सा पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो पीढ़ी है वो बाकी सारी पीढ़ियों से बहुत ही आगे निकल चुकी है उस चीज में। Let me just add one more dressing up that we do. और एक और ड्रेसिंग अप मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम करते हैं। We all come to Saturday service and feel and look very good. आप शनिवार की सभा में आते हैं, अच्छा पहनावा करके एकदम अच्छे से आते हैं। You want to look normal. और आपको नॉर्मल दिखना है। You want to show that you are overcoming all your struggles. और आपको ये दिखाना है कि आप सारे संघर्षों से उभर कर आ रहे हैं। And people should call you, you're a wonderful Christian. We should all follow you. और आप चाहते हैं कि लोग आपको बोले कि तुम एक बहुत ही अच्छे क्रिस्ती हो, अच्छे मसीह, और हम सभी को आपके पीछे चलना चाहिए। I'm not talking about you, I'm talking about myself. मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। We all dress up, including me. We dress up to look good. We dress up to receive that blessing from others. और हम तैयार होते हैं कि लोग हमें देखें, हमें पसंद करें और वो आशीर्वाद पाए लोगों से हम। Can I say this? We are all Jacobs. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम सभी लोग याकूब हैं? We are all Jacobs. हम सभी लोग याकूब हैं। If we were sitting in church today, I would have told you to look at your neighbor and say, you are a Jacob. I am a Jacob. अगर आज हम सभा में बैठे होते तो मैं आपको कहता कि अपने पड़ोसी से देख के कहिए कि मैं एक याकूब हूँ। One of the saddest moments in the story is when Isaac finally calls Jacob to kiss him. और सबसे उदास चीज जो इस कहानी में है वो ये है जब इसहाक जो है याकूब को चूमने के लिए बुलाता है। You know, it's probably one of the last tests that Isaac wants to have to test whether this is really Esau or Jacob. और शायद ये आखिरी टेस्ट है जो इसहाक चाहता है ये जानने के लिए कि क्या ये एसाव है या याकूब है। When Jacob came near Isaac, he smelled Esau over there. जब याकूब इसहाक के नजदीक गया तो इसहाक को एसाव की सुगंध आई। And he pictured Isaac, this strong man, this hairy, this mighty hunter, and he was filled with this joy and he started blessing Jacob over there.
और इसहाक जो है वो अंधा है, उसे दिखता नहीं है, तो उसने ये कल्पना किया एक बहुत ही बड़ा आदमी उस शरीर के साथ, और वो इतना खुश हुआ कि उसने आशीर्वाद देना शुरू किया। Thinking of Esau, he started blessing Jacob. और एसाव के बारे में सोचते सोचते उसने याकूब को आशीर्वाद देना शुरू किया। Jacob finally saw his father being happy with him. और याकूब ने अपने पिता को खुश होते हुए देखा, उसके प्रति खुश होते हुए देखा। Finally he saw his father smiling at him. आखिरकार उसने अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा। Finally he saw Isaac, his father, looking at him as the firstborn. और आखिरकार उसने देखा कि इसहाक जो है वो उसे एक पहला जन्मा पुत्र के नजरिए से देख रहा है। He saw that his father is so pleased with him right now. उसने देखा कि उसका पिता इतना खुश है उससे। And then he got the blessing. और फिर उसे वो आशीर्वाद मिला भी। Stole the blessing actually. उसने उस आशीर्वाद को चुराया। How do you think Jacob felt at that moment? आपको क्या लगता है याकूब ने क्या महसूस किया होगा उस समय? I really don't think he felt great at that moment. I don't think Jacob felt great at that moment. मुझे नहीं लगता कि याकूब ने अच्छा महसूस किया होगा उस समय। Because he dressed up like someone else and received the blessing that was meant for that person. क्योंकि वो तैयार हुआ किसी और व्यक्ति जैसा और उस आशीर्वाद लिया जो किसी और व्यक्ति का था। Let me say this. Let me just say this, okay? और मैं आपसे ये एक चीज कहना चाहूंगा। It is not good. It's not a good feeling to be accepted and blessed for someone you are not. और ये अच्छी बात नहीं है कि आपको अपनाया जा रहा है या आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है उन चीजों के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो आप है नहीं। It can be tiring and frustrating actually. और वो आपको थका सकता है और आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। Because you have to keep putting up that act every week. क्योंकि आपको हर हफ्ते ये नाटक दोहराते रहना है। So what's the solution? तो इसका उपाय क्या है? So that's the last point I want to talk about. How do we truly get this blessing? तो ये आखिरी पॉइंट है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार आशीर्वाद पा सकते हैं। How should we truly be blessed? हम किस प्रकार सच में आशीषित हो सकते हैं? The answer is spiritual. तो उसका उत्तर है आत्मिक। Let me just explain what that means. और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका अर्थ क्या है। It is completely the grace of God that Jacob was blessed. और ये पूरी रीति से परमेश्वर का अनुग्रह था जो याकूब को वो आशीर्वाद मिला। Why am I saying that? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? Because Jacob is one of the most unlikable person in the Bible. क्योंकि याकूब जो है वो एक बहुत ही अनचाहा या अनचहिता व्यक्ति है वचन में। There is hardly anything good in him written in the Bible. और उसके बारे में ज्यादा कुछ अच्छा लिखा नहीं गया है बाइबल में। He is manipulative. He's crooked in his ways. He fooled almost everyone in his life. वो झूठा है, उसने काफी लोगों को बेवकूफ बनाया अपने जीवन में और वो एक ठग है। Yet it was the scandalous grace of God that pursued a man like Jacob. फिर भी ये परमेश्वर का ये बहुत ही अजीब सा एक अनुग्रह है जो याकूब को वो आशीर्वाद मिला और आशीषित हुआ वो। You know, there's hope for all of us. और हम सभी लोगों के जीवन में वो आशा है। We've all done what Jacob has done. और हम सभी लोगों ने वो चीज किए हैं जो याकूब ने किया है। We have manipulated. We have done things that are wrong. We have used people. We have pretended to be someone. Yet the grace of God pursues us. हमने झूठ बोला है, हमने लोगों का इस्तेमाल किया है, हमने अलग अलग चीजें की है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा इस्तेमाल परमेश्वर करता है। The grace of God follows us, pursues us, and almost chases us, despite our pride,
our self-righteousness and continual resistance. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे पीछे आता है, बल्कि हमारे पीछे दौड़ता है हमें पकड़ने के लिए. Despite our pride, our self-righteousness and continual resistance. हमारे घमंड के बावजूद, हमारे स्वधार्मिकता और सारी चीजों के बावजूद वो हमारे पीछे आता है. And we do that over and over again, but the grace of God never gives up on us. और हम ये लगातार करते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है. This grace of God never gives up. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो कभी छोड़ता नहीं है हमें. That's how Jacob was blessed. और उसी प्रकार याकूब को भी वो आशीर्वाद मिला, वो आशीषित हुआ. So how does that apply to our lives today? तो आज वो हमारे जीवन में कैसे उसका संबंध है? How does that scandalous grace reflect on our life today? तो कैसे वो अजीब सा जो परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में उसे दर्शाता है. Esau was the firstborn. Jacob pretended to be the firstborn. एसाव जो था वो पहला जन्मा पुत्र था, पर याकूब ने ढोंग किया वो पहला जन्मा पुत्र बनने का. But we have a firstborn that Paul calls in the book of Colossians, the firstborn of all creation, that is Jesus. और पौलुस जो है वो कोलोसियों का पहले किताब में बुलाता है उस पहले जन्मे पुत्र को, और वो है यीशु. The firstborn of all things. He was blessed above everything. He was the son of the living God. He had everything that one can have. और वो पहला जन्म पुत्र, वो पुत्र सारे रचनाओं से ऊपर, जिसके पास सब कुछ था, जिसके पास परमेश्वर का प्रेम था. Like he was loved, he was cherished. और उससे प्रेम किया गया था, उसे सराहा गया था. And he was truly blessed above everything, and he didn't have to dress up like anyone. और उसे आशीष, सभी चीजों से ज्यादा उसे आशीष मिला था, और उसे ढोंग करने की जरूरत नहीं थी कभी. Because he knew that he was loved by God, and he knew that he was blessed above everything, so he didn't have to ever dress up like anyone else. क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, तो इसलिए उन्हें वो ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ी या कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी. He was the true firstborn. और वो एक सच में पहला जन्मा हुआ पुत्र है. And yet, फिर भी he dressed up for you and me. फिर भी वो तैयार हुए, एक अलग पहचान ली आपके और मेरे लिए. So that he can take your sin and my sin and dress up with your unrighteousness and my unrighteousness and go to the cross. ताकि वो आपके और मेरे पाप को अपने पे ले सके और आपकी अधार्मिकता को अपने पे लेकर उस क्रूस पे आपको एक धार्मिक जीवन दे. He didn't have to do anything of that. उन्हें वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी. Because he was secure in his firstborn relationship with the Father. क्योंकि वो सुरक्षित थे अपने पिता के साथ. But he gracefully dressed up for you and for me. लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी वो तैयार हुए आपके और मेरे लिए. So that you can receive his blessing that he deserved, that he always had. ताकि आपको वो आशीर्वाद और आशीष मिले जो उनकी थी और जो हमेशा से उनकी थी. So today you don't have to dress up like anyone else. तो आज आपको किसी और जैसे तैयार होने की जरूरत नहीं है. But Jesus did that for you already. क्योंकि यीशु ने आपके लिए पहले से ही वो कर लिया है. Today his firstborn status is yours. तो आज वो उनका पहला जन्मा हुआ जो स्टेटस है, जो नाम है, वो आपका है. Imagine you are a firstborn heir with Jesus. तो कल्पना कीजिए आप वो पहले जन्मे पुत्र है यीशु के साथ. You know, in Hebrews chapter 12 verses 23 it says that you are all firstborns. और इब्रानी का 12 अध्याय 23 वचन कहता है कि हम सभी लोग पहले जन्मे हैं. Like we are the church of the firstborns.
हम कलीसिया है उस पहले जन्मे पुत्र की। How can we all be firstborn? हम कैसे वो पहले जन्मे पुत्र हो सकते हैं? How can we all be firstborn? हम सभी लोग कैसे पहले जन्मे पुत्र हो सकते हैं? But I mean, like, it can be one, it can be two, but all of us are firstborn. एक दो समझ में आता है, पर हम सभी लोग पहले जन्मे हैं। And God uniquely has placed His purpose on each one of us over here. और परमेश्वर ने एक अलग रीति से योजना बनाकर हमारे जीवन में बनाकर हमें भेजा है। So today, all the blessing that was of Jesus is yours. तो आज वो सारी आशीष जो यीशु की थी, यीशु मसीह की थी, आज वो आपकी भी है। Because He took your curse on Himself. क्योंकि उन्होंने आपका श्राप खुद पे लिया। You remember Rebecca said that let all the curses fall on me. She never even knew what she was saying over there. और आपको याद है रेबेका ने कहा कि तुम्हारे वो सारे पाप मुझ पे आने दो। रेबेका शायद जानती भी नहीं होगी कि वो क्या कह रही है। She said, let all the curses fall on me. She didn't even know what she was talking about. उसने कहा कि वो सारे श्राप जो है मुझ पे आने दो। वो शायद जानती भी नहीं होगी वो बात क्या कर रही है। But Jesus gracefully did that for you. He is the true Rebecca. He is a better Rebecca who actually took all your curses on Himself gracefully. पर यीशु ने वो सारे श्राप जो है अपने पे लिया है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि यीशु मसीह जो है वो एक बेहतर रेबेका है। So today you are a firstborn in Christ. तो आज आप पहले जन्मे पुत्र है यीशु में। You don't have to dress up today. आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है। You are already firstborn. आप निश्चित पहले जन्मे पुत्र है। You don't have to pretend like one. आपको ढोंग करने की जरूरत नहीं है। So what does this apply to our life today? तो आज हमारे जीवन में वो क्या दर्शाता है? You know, being a firstborn or being blessed as a firstborn is not just for ourselves. और एक आशीर्वाद पाना एक पहले जन्मे पुत्र के अनुसार वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। It's not just for us to feel good about it. हमें सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। Where in the Bible we see when a person is blessed, it's not just for himself, it's so that he can be a blessing to others. और बाइबल में हमने काफी हर जगह पे देखा है कि जब एक व्यक्ति को आशीष मिलता है वो खुद के लिए नहीं होता बल्कि वो आशीष बढ़ाने के लिए होता है। So when you are blessed today and when you know that you are the firstborn and you are blessed in Christ, it's for you to give that blessing out to others. तो आज जब आप ये जानते हैं कि आप आशीषित है, आपको वो आशीर्वाद मिला है पहले जन्मे पुत्र का, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो आशीष दूसरे लोगों को भी दें। So when you come to Christ and when you are blessed, for you it is to bless others. तो जब आप यीशु में आते हैं और आप आशीर्वाद पाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को आशीष दें। This world is in need of lot of blessing today. और ये दुनिया जो है उसे बहुत सारे आशीर्वाद और आशीष की जरूरत है। It's a difficult time. और ये बहुत ही कठिन समय है। Let's not keep our blessing to ourselves. तो ये जो आशीष आपके पास है वो आपके पास ही रहने नहीं दीजिए। Even as you dwell in the firstborn status of Jesus. और जैसे आप पहले जन्मे पुत्र यीशु के द्वारा पहले जन्मे पुत्र वाले स्टेटस में आप अपने आप को पा रहे हैं समय। My prayer is that you will continue to be a blessing around those around you. और मेरी प्रार्थना ये है कि आप दूसरे लोगों में आशीष बनने का कारण बनेंगे। Let's pray this time. प्रार्थना करेंगे इस समय। Father, thank you that we don't have to dress up, we don't have to pretend to be someone we are not. और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हमें एक ढोंग करने की या एक दिखावा करने की जरूरत नहीं है जो हम नहीं हैं। We don't have to grasp at any blessing, you have freely given it to us. हमें कोई आशीर्वाद छीनने की जरूरत नहीं परमेश्वर, बल्कि आपने पूरी रीति से दिया है हमें आशीर्वाद। The greatest blessing that we can ask, O Lord Father, is your Son Jesus.
और सबसे बड़ी आशीर्वाद जो हम आपसे मांग सकते हैं वो आपके बेटे यीशु है परमेश्वर। And thank you, Lord Father, for the sacrifice that He made on the cross, through which, oh Lord, we can be blessed above all that we can ask and think tonight. और धन्यवाद करते हैं पिता उस बलिदान के लिए जो यीशु ने उस क्रूस पर दिया है हमारे लिए। We bless this church, oh Lord Father, bless this city. इस कलीसिया को आशीषित कीजिए परमेश्वर, इस शहर को आशीषित कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक बहुत ही खूबसूरत शनिवार की शाम में, जहाँ पे हम फिर सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना और उसका धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु भोज के लिए, आइए हम सब मिलकर अपनी बाइबल को टर्न करें पहला कुरिन्थियन 11 चैप्टर उसकी 23 से 26 आयत में, जैसे लिखा है। On the same night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and his people, an agreement confirmed with his blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका कि आपने हमें एक और आपका धन्यवाद करने के लिए आपका समय दिया। और जैसे ही हम ये प्रभु भोज लिया है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए जो क्रूस पे किया, और इन सारी बातों को प्रभु हम अपने जीवन में मानते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। धन्यवाद के साथ में परमेश्वर आप हमें संभाल के रखिए, इस पेंडेमिक से हमारे परिवारों को और हमारे जितने भी प्रियजन हैं उन सबको बचा के रखिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस पेंडेमिक को पूरी तरीके से हमारे देश से और इस पूरी दुनिया से हटाएंगे। सबके लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Hi church, we hope that you have partaken in the Holy Communion along with us, कि आप सब ने हमारे साथ प्रभु भोज का आनंद उठाया होगा। और आने वाला समय बहुत ही एक्साइटिंग है जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। We were waiting for this moment, the release of the song in Hindi version by Red Church. So it's just going to be released right now on this online service. So please go ahead, watch it, enjoy it and be blessed. आशीषित हो जाइए इस वीडियो के साथ, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका आनंद उठाए। धन्यवाद। तुझे आशीष और सुरक्षित रोशन मुख तेरे पर, अनुग्रह से भरे प्रभु मोड़े तेरी ओर मुख और शांति दे। तुझे आशीष और सुरक्षित रोशन मुख तेरे पर,
दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। उसकी कृपा तेरे ऊपर और 1000 पीढ़ियों पर, तेरे वंशज बच्चों पर, उनके वंशज बच्चों पर। उसकी कृपा तेरे ऊपर और 1000 पीढ़ियों पर, तेरे वंशज बच्चों पर, उनके वंशज बच्चों पर। उसकी कृपा तेरे ऊपर और 1000 पीढ़ियों पर, तेरे वंशज बच्चों पर, उनके वंशज बच्चों पर। उसकी कृपा तेरे ऊपर और 1000 पीढ़ियों पर, तेरे वंशज बच्चों पर, उनके वंशज बच्चों पर। जाए आगे तेरे पीछे और बगल में, तेरे चारों तेरे अंदर, वो तेरे साथ है, तेरे साथ है। हर सवेरे सायंकाल में, तेरे आने और जाने में, विलाप में आनंद में, वो तेरे साथ है, 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 तेरे साथ। From my heart, as a father and a grandfather, I'd like to bless you in this way. May you reach the purpose for which you were created. May you have courage above your peers. May you have more passion for the things of God than others think is necessary. May you dream more than others think is practical. May you expect more than others think is possible. May you choose wisely without earthly bias. You have people to influence that you've not yet met. You have lives to change that are waiting for your arrival. You are strategically placed wherever God takes you by His grand design, just so you can become everything He made you to be. You are made by God to be here for such a time as this. हाय रेड चर्च, हम फिर से एक दूसरी सूचना के साथ शामिल है। आशा करते हैं कि आपने पूरा सर्विस बहुत एंजॉय किया होगा, खास कर वर्ड, वर्शिप और जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ। और अगर आपको ये बहुत पसंद आया, आशीषित हुआ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ। और फिर मिलेंगे हम अगले शनिवार को इसी समय इसी वक्त ऑनलाइन सर्विस में, और फिर से प्रभु का आनंद उठाएंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।